question glorify complexity sometimes, which is true. I think sometimes the idea is we are here to simplify complexity, not complicate the simple things. I think that's what it is. Absolutely. Piyush, if not an actuary, what would you have become? So I think aligned with the theme, the possibilities are endless. I could have been a coder, I could have been an entrepreneur. So it was fate that I was supposed to be an actuary, but otherwise I could have explored anything. Absolutely. Anjali, for you, one misconception people have about insurance. I would say from life side, if I don't die, what will I get? They don't take insurance as protection, but they take it as investment. Okay. Yash, coming to you, AI assistant or a calculator? AI assistant, because the calculator won't ask me if I have questions on my assumptions. Right? Sunil, for you, one technology every actuary should master. Coding and engineering, so I already mentioned this. Consistent. Anjani, coming to you, which customer insight has surprised you the most? That they want a short-term term policy and something with daily and weekly premium because the inclusive segment works on daily and weekly premiums. Last one for you, Piyush. Complete this sentence. Infinite impact means. So for me, it would mean building financial resilience today for the farmers, for the communities that will last for generations to come. Alright, that was quite rapid. Thank you for all of you. And now that we have these fellow panel, can you please mention your name and who the question is directed to, and then the question. Thank you. My name is Meet, and I'm asking question to Piyush sir. He said that we got various rules in banking and quant side also. So what makes us unique from the quants? Like everyone who knows coding, knowledge of stock market and like trading, they all can become quants. But what makes us unique? So I think that was for Yash or me. No, I am asking for both. Like you have a mastery in coding side, engineering coding side. So what we can master in that? See, actuaries, in my view, bring a unique skill set along with any coding or technical experience. We bring in communication skills and the ability to translate that into something which is understandable by the business. So, in terms of coding, I think Python, R, these are very common languages which every actuary should know. They should be able to code and build models around it. But at the same time, interpreting the results and not just using it as a black box, which some of the data scientists will do, and being able to explain what is happening, why are these results changing, what are the driving factors, and what the business needs to do to ensure there are no adverse effects on it because of that. Those are the skill sets which an actuary brings. I hope I answered your question. To express our gratitude for such an engaging session, we'd now like to present a token of our appreciation to अंदर आ जाओ। स्टिल भाई बैठ जाओ ना, बैठ के लो ना। sharp insights for everything. Thank you so much. Big round of applause for this partnership and for the exciting opportunity.
Sir, please. बोले पैकअप कर रहे थे हो गया हेलो 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 मेरे पास है नहीं बाहर बाहर नहीं यहाँ से करो ना तुम लोग बस ड्रॉप है हाँ I think this is how a perfect evening looks like. होना चाहिए। सोच लीजिए कि ये हमारे प्रोफेशन का जन्मदिन है, ठीक है, तो हम उसको वैसे ही मानते हैं और हर साल नई चीज़ें होती हैं, हर साल हम लोग कोशिश करते हैं और नया करें। और अभी आपका सरकार ने विकसित भारत के बारे में भी बोला है, तो उसमें हमारा योगदान बहुत होगा, ऐसा हम मानते हैं। और आपने गवर्नमेंट के DFS के असिस्टेंट एडिशनल सेक्रेटरी की भी बात सुनी। That is also very encouraging to see that there's going to be a lot of scope for the profession going forward. इंश्योरेंस पेंशन तो कोर डोमेन है, उसको छोड़ के भी उससे आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमको। हाँ, तो देखिए बच्चों के लिए तो ऐसा है, अगर और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो बच्चों को भी आजकल चाहिए कि नई नई चीज़ें सीखें। अभी आपने सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल डोमेन्स में हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, बट जो नई चीज़ें आएंगी, एंड एक्चुअलीज़ को हमेशा अनसर्टनिटी बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों को ऐसे नहीं लगता कि रिस्क है तो अवॉइड करें, वी थिंक ऑफ रिस्क एज एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जैसे जैसे आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको उनको ऑब्वियसली दे विल गेट मोर चांसेस टू होन देयर स्किल्स, देखेंगे कि क्या क्या और एरियाज़ में वो लोग काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। हमारी तरफ से तो एक तो है, आपने आज तो देखा हमारा ब्रांड आइडेंटिटी वो तो हुआ, और बच्चों के लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया जिसमें यू आर एबल टू गेट देम लिंक्ड, तो उनको भी ऐसे फिर एनकरेजमेंट मिलेगी कि ठीक है, ऐसे नहीं कि खाली पढ़ रहे हैं, नौकरियां भी हम लोग वी आर हेल्पिंग देम आउट। तो वो तो अभी के लिए है, बट आगे के लिए जैसे एडिशनल सेक्रेटरी सर ने बताया, हमारा एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज कर रहे हैं टू गेयर अप विद द न्यूअर थिंग्स। ESG के बारे में आपने अभी कार्बन का वो सर्टिफिकेशन भी देखा, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें हम लोग अपनी तरफ से वी आर फैसिलिटेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द students, not just students, for all of us, people like us who actually already qualified many years back। हमारे लिए भी सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा सीखते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए AI विल चेंज द वे वी डू थिंग्स। पहले जैसे हम लोग से भी पहले जनरेशन में वो लोग हाथ से कैलकुलेट करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद ये आया, आपका कैलकुलेटर आया, तो लगा अरे कैलकुलेशन एबिलिटी ख़त्म हो गई। बट आपको क्या डालना है, क्या देखना है, उस आउटपुट को समझना कैसे, वो तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए उसके लिए। उसके बाद कंप्यूटर्स आए तो सोचा कि चलो ये बंद हो गया, फिर एक्सेल आया तो सोचा वो भी बंद हो गया। तो ये सारा अगर करते रहोगे तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमें उसके हिसाब से अडेप्ट करना है, तो हमारा करने का तरीका चेंज हो जाएगा।
जो हम काम कर रहे हैं उसका तरीका चेंज हो जाएगा। पर उससे ये भी होगा, अगर आपको AI से सहूलियत मिलती है कि कोई नई नई अलग अलग चीज़ें करें, दैट विल फ्री अप योर टाइम टू डू अदर थिंग्स विच जैसे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकते हैं। जैसे आज ये लोगों ने बताया कंज्यूमर बिहेवियर समझना, आपको बिहेवियरल इकोनॉमिक समझना, वो आप AI एक हद के ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके लिए तो ह्यूमन बीइंग चाहिए जिसको मालूम है कि नंबर्स क्या हैं, उसका मतलब क्या है और उसका कंज्यूमर के लिए क्या मतलब है। वो तो खाली ह्यूमन इंटेलिजेंस ही कर सकता है ना। ऐसे बेनिफिशियल हो गया, दैट्स अ प्लेटफॉर्म। अभी तक क्या होता था, हम लोग के पास था, लोग अपना एडवर्टाइज करते थे हमारे वेबसाइट पे और वहाँ से फिर लोग अप्लाई करते थे। अभी क्या है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ठीक है आई हैव क्लियर दिस मैनी पेपर्स, मुझे ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है जॉब करने में। उधर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इंटरेस्ट है, तो कहीं पे दोनों को मिलाने की बात है, तो फिर वो तो जॉब पोर्टल कर रहा है। जो advice, okay, I could not hear the question. So what advice to the young students? आप बहुत चीज़ें सोचेंगे, सुन रहे होंगे कि AI है, उससे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उससे नौकरियां नहीं मिलेंगी। I will say that the nature of work will change. Work will still be there. It is the nature of work, and what your contribution is to work will change. So you have to keep your skills current. आप behavioral aspects भी सीखिए, जैसे बोला communication skills सीखिए, आज पैनल डिस्कशन में बोला कोडिंग सीखिए, इंजीनियरिंग स्किल्स सीखिए। ये नहीं कि ये कोड करना है तो कोई करके दे देगा, उसको एक बना हुआ कोड उसको आप एनहांस कैसे करेंगे, उसके लिए आपको तो पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है ना। और आउटपुट कैसे समझना है उसके लिए भी नॉलेज ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर पास कर लिया, फार्मूला आता है, फार्मूला अप्लाई किया, नंबर आ गए, ऐसे नहीं होता है। उससे आगे भी है ज़िंदगी, तो वो देखना है। See, no, I will not have a number in mind per se, but all I have to say is AI is not a technology, it is a layer, and it will be across everything we do in life. The way we do things will change, but it is not कि जैसे आपको एक नया टेक्नोलॉजी है जैसे पाइथन वगैरह, वो एक टेक्नोलॉजी है, बट ये उससे आगे जाता है। दिस इज अ लेयर, है ना। तो फिर दैट इज व्हाट आई विल लाइक टू से। Yes. So I will not have a number offhand, but definitely companies are investing in looking at ways in which AI can be integrated as a part of the work that the actuaries are doing. You tread with caution because AI के साथ बहुत और चीज़ें हैं, जैसे आपको मॉडल बायस है, हेल्यूसिनेशंस है, तो वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसको एड्रेस करेंगे। तो ऐसे नहीं कि यू आर वेलकमिंग इट विथ ओपन आर्म्स, वी आर डूइंग ट्रेडिंग विथ कॉशन बट श्योरली मूविंग अहेड। See, India is poised for growth. It is going to become a 7 trillion economy in some years' time, and we need skilled people for that. And as actuaries, we have traditionally been working in insurance and pension sector, but we can actually work in other areas. We are able to model and we are able to give insightful answers. So there are a lot of industries where actuaries can work and people can make informed decisions. So we'll be able to solve the skill deficit problem which is there currently in the country, and that's what as AI we are focusing on developing more actuaries who will be able to work across industries. ये हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। हमारे प्रोफेशन के लेगेसी एंड हिस्ट्री को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम हम आगे फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा की है आज। हमारा प्रोफेशन आज ऐसे मोड पे है कि हमारे जो स्किल सेट्स है वो अप्लाई किए जा सकते हैं, खाली इंश्योरेंस में नहीं बट काफ़ी सारे दूसरे क्षेत्रों में भी।
जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्लाइमेट रिस्क हो गया, एंड जो स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे प्रोफेशन के लिए वो काफ़ी बड़ी है, एंड खाली इंश्योरेंस एंड पेंशन तक लिमिटेड नहीं है। तो हमारे जो मुद्दे आज बात किए गए थे कि कैसे हमारा प्रोफेशन और ग्रो कर सकता है, एंड खाली इंश्योरेंस एंड पेंशन रिलेटेड ग्रोथ ना हो, इट कैन बेसिकली वो ग्रो कर सकता है कोई भी डिफरेंट एरियाज या इंडस्ट्री में। आई थिंक ब्रांड बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रांड बाइबल के कॉन्सेप्ट की वजह से हमें एक चीज़ इस्टेब्लिश हो रहा है कि हमारा प्रोफेशन एक है। हमारे प्रोफेशन के एक्चुअलीज डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं, थोड़े इंश्योरेंस में करते हैं, थोड़े हेल्थ केयर में करते हैं, थोड़े बैंकिंग में करते हैं, हर एरियाज़ में काम करते हैं। बट हमारा ब्रांड बाइबल का थॉट प्रोसेस ये है कि सब एक्चुअलीज एक ही भाषा बोले, एक ही सोच समझाए, एंड आप पूरा प्रोफेशन एक जगह पे एंड एक यूनिटी के साइड से सोच रहा है। तो हमारा जो ब्रांड बाइबल है उसका कॉन्सेप्ट भी वही है कि हमारी सोचें अलग हो सकती है बट हमारा थॉट प्रोसेस एंड फिलोसफी एक है, एंड वही ब्रांड बाइबल का थॉट प्रोसेस है।